Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. A very good evening, listeners, and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and related issues. You can call us on 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. If you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I'm Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। रोज की तरह हम हाजिर हैं देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक और कारोबारी खबरों के साथ। आज रविवार है और हर एक रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके प्रश्न प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमसे बात करने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। और शुरुआत में हेडलाइंस लेके मौजूद हैं एस रंगभाष्य। Thank you, Amrish. The top stories. Government aims to create 5 crore MSME jobs in the country, says Micro, Small and Medium Enterprises Minister Nitin Gadkari. India's gold imports plunged 81% during the April-July period this year, and foreign investors pump in over 28,000 crore rupees in Indian markets in the first half of August. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य देश में सूक्ष्म लघु मध्यम क्षेत्र में 5 करोड़ रोजगार पैदा करने का है। देश में सोने का आयात इस वर्ष अप्रैल से जुलाई की अवधि में 81% घट गया और विदेशी निवेशकों ने अगस्त के पहले पखवाड़े में भारतीय बाजारों में 28,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। Well, now for all the details, and let's start with the MSME sector. Micro, Small and Medium Enterprises MSME Minister Nitin Gadkari had said that MSME sector plays a major role in the development of the country. Speaking at Swawalamban E-Summit 2020 in New Delhi today through video conference, Mr. Gadkari said, till now, 11 crore jobs have been created in the MSME sector, and in the next 5 years, the government aims to create 5 crore more jobs in the country. He said 48% of the export in the country are from the MSME sector, and government aims to take this export to 60%. और इस बीच चेन्नई से हमारे श्रोता चंद्रकांत जी हमसे जुड़ चुके हैं। चंद्रकांत नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो चंद्रकांत जी। हाँ जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं। तब मेरा नाम चंद्रकांत सोलंकी है, मैं चेन्नई से बोल रहा हूँ जी। मेरा प्रश्न ये है कि जो नया लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न है उसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड एंड शेयर्स के लिए ISIN नंबर इज ए मस्ट जी। अच्छा, अभी मेरा इन्वेस्टमेंट UTI पेंशन एंड रिटायरमेंट फंड में है और UTI वाले बोल रहे हैं कि ये जो फंड है वो डीमेटेरियलाइज फॉर्म में वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए उसका ISIN नंबर नहीं है। तो इन दिस केस हाउ एम आई टू फाइल माई इनकम टैक्स रिटर्न। नंबर 2, in case if I am not mentioning ISIN number, there are all possibilities that they may reject my application form, my return. Income tax return. Yeah. Okay. I will tell you, there is a very straightforward way of getting the ISIN number of the, this is a new introduction. So mutual funds will be preparing for it. The way to do it is,
every security issued in this country, whether it be equity, bond, or mutual fund, should have an ISIN number. If it's not for mutual fund, so then it will be provided for, because now it is law. That has become the reporting format. The way to do it is, there are CAMS and Karvi. Karvi happens either at Karvi computer share. It's a share transfer agent. It's a company which provides all kind of accounting services. When you get your account statement of UTI, you get it from Karvi. So you can go to Karvi's website, get your consolidated account statement for across mutual funds, not just UTI, all mutual funds, by putting your registered mail ID. And when you get that consolidated account statement from Karvi or CAMS, which is the other share transfer agent, then all the securities will also have the ISIN number. If you have a demat account, NSDL will be sending you the demat consolidated account statement as well. That consolidated account statement will also have the NSDL, because you have shares as well as mutual fund. Then only you will get it if you have a demat account. In that case, you will get all your ISIN number for all your investment at one place. Right. And let's move on and take our next caller. Joining us next is Dr. Malhotra from Delhi. Good evening, Dr. Malhotra, and welcome to the program. Good evening. Go ahead, sir. Put your question. I just wanted to know that can I pledge my mutual funds account, demat or without demat, to get the loan for my future investments or for my future applications? Yes, you can. Banks easily provide you loan against investments in mutual funds. They keep and they put a lien on the investment. And whether it be in demat account or not, it doesn't matter, because when you take a loan, it's effectively mortgaging your investment. So they make sure that you cannot sell those investments, and if you without clearing your loan, and that happens by informing the mutual fund company through their registrar that you have taken a loan, so this investment cannot be sold till that. So the bank will give you a no objection certificate after you have cleared the loan for those investments to be sold. So it can happen very easily. Most banks provide loan against mutual fund very easily. और दिल्ली से हमारे श्रोता रमेश लाइन पे हैं। रमेश नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो रमेश जी, हेलो। I think there is problem in the telephone line. We'll try and get back to him. Hello. I think hello. Can you hear us, sir? No, I think we have lost contact with him. We'll try and get back to him later in the show. Moving on, we are now joined by Mushtaq from Kolkata. Good evening and welcome to Market Mantra. गुड इवनिंग सर। अच्छा, डेट फंड क्या है इसको जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। सर दूसरा ये रिक्वेस्ट है, वो मंडे को रिपीट नहीं होता है रात 12:20 में मार्केट मंत्रा, प्लीज उसको मंडे को भी रिपीट करें। ये दो सवाल है। थैंक यू। ओके फाइन। यस धीरेन्द्र, अबाउट डेट फंड्स। म्यूचुअल फंड एक जरिया है जिसमें कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और निवेश डिपेंड करता है। आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड अलग अलग शेयर में पैसा लगाता है। जब आप डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड अलग अलग बॉन्ड्स में पैसा लगाता है। और जो डेट म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स का म्यूचुअल फंड है, अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड है, कंपनियां इशू करती हैं, अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स है, कंपनियां इशू करती हैं। कंपनियां जो कि बड़ी स्ट्रांग कंपनी है, जो कि उनको क्रेडिट रेटिंग मिलता है उनके स्टॉक के आधार पे, तो अलग अलग तरीके की कंपनियां, गवर्नमेंट का जो बॉन्ड्स है उसमें भी ये फंड इन्वेस्ट करते हैं। तो बॉन्ड म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स का म्यूचुअल फंड है। और बॉन्ड के दाम में जो उतार चढ़ाव होता है या जो बढ़त होती है या जो ब्याज उसमें मिलता रहता है, वो रोज के एनएवी में रिफ्लेक्ट होता है। तो हर म्यूचुअल फंड चूंकि आप हर रोज खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और इसका दाम उसी अनुपात में जो कि जो जिन बॉन्ड में इस फंड ने पैसा लगाया है उस रेशियो में ये रोज बढ़ता रहता है।
और गाजियाबाद से हमारे श्रोता गौरव लाइन पे हैं। गौरव नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार मार्केट जी, नमस्कार धीरन जी। तो ये आईसीआईसीआई इक्विटी सेविंग फंड अभी 40% जो है इक्विटी में है, बाकी 60% डेट में है। तो इस करंट सिनारियो में इसमें रहा जा सकता है कि मैंने एज ए लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा वॉलेटिलिटी मेरे को सूट नहीं करती, तो इसमें रखा हुआ पैसा, तो इज इट गुड फॉर स्ट्रेटेजी फॉर दिस। एंड सेकंड क्वेश्चन सर, क्या यूनिट्स जो है वो किसी को गिफ्ट की जा सकती हैं क्या, एज अपने भाई को या अपने बेटे को या अपने। हेलो, आपका पहला सवाल कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी सेविंग फंड कैसा फंड है एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए। ठीक ठाक फंड है। इसका प्रदर्शन अपने दूसरे फंड की तुलना में या उसमें अगर हम इसकी तुलना करें तो हाल फिलहाल इसका प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है। शुरुआत में इसका प्रदर्शन अच्छा था और 6.5% का इसका रिटर्न है 2014 में जब ये लॉन्च हुआ था तब से अब तक, जो कि खाता नहीं माना जाएगा। और शुरुआत के सालों में इसका प्रदर्शन काफी अच्छा था। पिछले 1-1.5-2 साल से इसका प्रदर्शन काफी कमजोर है। और बात गिफ्ट किया जा सकता है, नहीं, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि गिफ्ट आसानी से कैसे किया जा सकता है। नहीं, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं, मैं अगले सप्ताह आपको बताऊंगा। Okay, fine. And let's move on and take our next caller. We are joined by Khadir from Telangana. Good evening and welcome to Market Mantra. नमस्कार सर। नमस्कार। Yes, go ahead. Put your question. एक जानकारी होना सर, कल मोदी जी साहब उपन्यास दिए थे ना, तो उसके दौरान कुछ मार्केट कल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और आप लोग म्यूचुअल फंड में कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदे तो ठीक रहता, परफेक्ट ऊपर जाने वाला म्यूचुअल फंड, कुछ जानकारी दे सकते क्या सर? यस धीरेन्द्र, व्हाट वुड यू से? मोदी साहब ने बहुत कुछ बोला था और उसका देश को फायदा होगा अगर वो चीजें अगर एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो। और मुझे उम्मीद है कि ये हेल्थ कार्ड और इन चीजों का लोगों को अगले 5-10 साल में बड़ा फायदा होगा। लेकिन कल बाजार पे क्या होगा वो शायद कोई नहीं बता सकता है। और इस तरह की जानकारी हासिल करने के चक्कर में न रहें, आपको बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि बाजार में का जो दिग्गज है उसको भी नहीं पता है कि क्या अनाउंस होने पे क्या हुआ करता है, किस स्केल का हुआ करता है। तो इस फिराक में न रहें कि कोई खास जानकारी मिलेगी और उसका खासा फायदा एक दिन हो सकता है। जी। और दिल्ली से हमारे श्रोता अनुभव लाइन पे हैं। अनुभव नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सभी को। जी नमस्कार। सर, एक क्वेश्चन मुझे पूछना था कि मैं पिछले 2-2.5 साल से मेरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो कुछ फंड्स हैं मेरे, मैं बस पोर्टफोलियो चेक करवाना चाह रहा था उनसे कि सभी मेरा अभी सही है परफॉर्मेंस इन फंड्स का, या फिर मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत है पोर्टफोलियो में। ये फंड्स के नाम है सर, एक्सिस ब्लू चिप फंड, पराग पारिक का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड और निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। ये 4 फंड हैं जिसमें 1000 रुपए की मंथली SIP है। और एक दूसरा सवाल है सर कि SBI ब्लू चिप फंड भी है मेरे पास, जिसमें लगभग लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट है टाइम टू टाइम करके। तो मैं सोच रहा था कि इस फंड से निकल करके एक्सिस ब्लू चिप में इसको पैसे को इन्वेस्ट कर देने का, तो ये क्या सही समय है ये करने का या हो गया? थैंक यू। एक्सिस ब्लू चिप SBI ब्लू चिप की तुलना में अच्छा फंड, अच्छा लार्ज कैप फंड साबित हुआ है। और बाकी जो आपने चारों फंड गिनाए वो अपने कैटेगरी में अपने तरीके के बेहतरीन फंड है। और चूंकि अभी बाजार काफी धड़ाम से गिरा था मार्च में, उसके बाद बड़ी बढ़त, काफी रिकवरी हुई है, पूरी तरह नहीं हुई है। और आपने अच्छे फंड का चुनाव किया था, निश्चिंतता से उसमें निवेश जारी रखिए। और हर साल इसी तरह एक बार रिव्यू कर दिया कीजिए कि जिस वजह से आपने उन फंड को चुना था वो वजह अभी भी बरकरार है और अभी है, अभी वो सारे कारण बरकरार है। इसमें जो आपका रिलायंस है स्मॉल कैप है, उसमें समय लगेगा उसमें फायदा होने में, लेकिन अगर आप 8-10 साल के लिए लगा रहे हैं तो लगातार उसमें लगाते रहिए। बुरे दिनों में पैसा लगाते रहने का एक तरह के फंड में खासा फायदा होता है।
Right. And our next caller is from Gurugram in Haryana, and we are joined by Navneet. Good evening and welcome to Market Mantra. Yeah, good evening, Dhirendra-ji. Good evening. I have a question. This is regarding the equity-based mutual funds. Mm-hmm. And we have seen a trend for last 3 to 5 years, these equity-based mutual fund, maximum equity-based mutual funds, they could not even beat the benchmark. 90% of the mutual fund schemes, they could not give the return. And now we have seen a trend, now people are liquidating their mutual fund investments, particularly equity-based mutual fund investments, and they have started directly investing into equities. Mm-hmm. So do you think this kind of trend is not a good sign for equity-based mutual funds? No, India is a large country and mutual funds are growing very rapidly. And it is also true that many investors have started investing directly. Many investors who have started investing directly could be primarily attributed to the convenience, that they have. You can start a brokerage account completely online with your, if you have a phone, if you have a bank, a smartphone, an Aadhaar card, so you are good to go. And a bank account which you can access online. So you can do it with your phone itself. It has become easy. Also, information on shares or companies has also become easy. There are many service providers who are providing you, what to buy, what to sell. But I don't think it is a very healthy trend because, investing in equity is a very sophisticated thing. It requires good amount of learning. For many investors, it might be a good idea to have the time, inclination, interest, and they know what they are doing. But many other people, most of the people, I would guess, they're simply investing. And in a rising market, it is very easy to make money in equity. And you don't know what to go, what they are investing in, what is the reason, do they know the reason? Mutual fund is on a completely different thing that, it's a managed portfolio. You are able to put your money with convenience in a programmed manner. It enforces discipline. It actually gets positioned as a savings and investment vehicle. Equity by its very design and it's very volatile, and because people are buying individual stocks day in and day out more frequently, they may not have when you buy a mutual fund, you think in terms of investing regularly for 3 years, 5 years. When you think of equity, just because you just might hold those shares for many years, but you think in terms of it can be sold anytime. The impact of volatility in equity market take its toll on investors, and investors are prompted to act more often. That itself is one of the biggest, disadvantage for individual investors getting into shares directly. And that too without understanding, I think it's a very risky thing. But it will take time for people to understand. I think when people lose money in shares and now it has become convenient, that is the cost of learning. Okay. That said, I would like to, touch upon the first aspect that many mutual funds are not beating the index. Yes, it is true that, last 2 years, many mutual funds and particularly large cap funds have not been able to beat the index. But, look at the 10-year return of Sensex. The 10-year return of Sensex unadjusted I'm not talking of the total return index, is about 7.6%. And when you look at the multi-cap fund category average, it's about 9-10%. When I look at the mid-cap, it's, 12%, 9%, even. So I would say that, one should not really take a view. Yes, last 2 years they have not, because, the index was, completely propelled or driven by 3-4 stocks doing exceedingly well. And mutual fund is far more diversified. That's one. The other is that in a country like India, where there are a large number of good companies spread across of different size and shapes and different dimensions, I would say that, the exposure to mid and small cap or a multi-cap fund which gets you that exposure is quite meaningful. And that actually is the mutual fund promise in terms of giving you wider access. And Right. the only index which works in India is, the Nifty and the Sensex, which is available to individual investors. Right. And before we take more calls, let's take a look at the bullion scenario. India's gold imports, which have a bearing on the current account deficit, plunged 81.2% to $2.5 billion, about 18,590 crore rupees during the April-July period this year, according to data from the Commerce Ministry.
Imports of the yellow metal stood at $13.2 billion in the corresponding period last year. Similarly, silver imports during the first 4 months of the current financial year also dipped 56.5% to $685.3 million. The decline in gold and silver imports has helped in narrowing the country's trade deficit difference between imports and exports to $13.95 billion during April-July 2020, as against $59.4 billion in the year-ago period. Gold imports have been recording a negative growth since December last year. India is the largest importer of gold, which mainly caters to demand of jewelry industry. और गोल्ड ईटीएफ से जुड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। गोल्ड ईटीएफ में जुलाई के दौरान 921 करोड़ रुपए की आमद दिखाई दी। ये पिछले महीने के मुकाबले 86% अधिक थी। सोने की बढ़ती कीमतों के कारण नए निवेशक बड़ी संख्या में इनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। भारतीय म्यूचुअल फंड एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष के पहले 7 महीनों में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ श्रेणी में 4,452 रुपए का निवेश हुआ। And let's continue with telephone calls. Joining us next is Vinay from Delhi. Good evening, Vinay. And what's it that you want to discuss? हेलो। Yes. मैं विनय कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ। जी बोलिए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना सर, मैं ब्लाइंड भी हूँ। जी सर, मुझे पीएम आवास योजना शहरी के बारे में ये जानना है कि सर इसकी जानकारी कहाँ से मिल सकती है। मेरा न गांव में मकान है न दिल्ली में, इसलिए मैं कहाँ से इसकी जानकारी हासिल करूँ, किस तरह से मुझे ये मिल सकता है। न मेरी अपनी कोई जमीन है। जी 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 समझ गए। जी धीरेन्द्र जी, क्या कहेंगे आप इन्हें? नहीं, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है रंगा। राइट, माफी मांगना चाहूंगा। जी। और विनय जी, जैसे कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम जो है म्यूचुअल फंड्स पे फोकस्ड है और उससे रिलेटेड इश्यूज की हम चर्चा करते हैं इस कार्यक्रम में। आपने पीएम आवास योजना की बात की, मगर मार्केट मंत्रा में इस आने वाले हफ्ते में हम जरूर प्रयासरत रहेंगे कि आपके लिए हम इसके बारे में जरूर जानकारी ला सकें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट कॉलर हैं सुभाष फरीदाबाद से। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। हाँ, गुड इवनिंग जी। बहुत बहुत नमस्कार सर। मैं ये जानना चाहता था कि मेरे पास जो शेयर है मैं अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर सकता हूँ डीमैट अकाउंट से? जी, आप अपनी वाइफ के नाम से ट्रांसफर कर सकते हैं। उनका एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा और आपके डीमैट अकाउंट से उनके डीमैट अकाउंट में ये ट्रांसफर हो सकता है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। और चलते हैं आज की अगली खबर की ओर। विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों में अगस्त के पहले 15 दिनों में सबसे बड़े खरीदार बने रहे। इस अवधि में उन्होंने डेट और इक्विटी में 28,203 करोड़ रुपए का निवेश किया। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 3 से 14 अगस्त के बीच इक्विटी में 26,147 करोड़ रुपए और डेट में 2,056 करोड़ रुपए डाले। इससे पिछले लगातार 2 महीनों से ही विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय बाजारों में मुख्य खरीदार रहे हैं। उन्होंने जुलाई में 3,301 करोड़ रुपए और जून में 24,053 करोड़ रुपए का निवेश किया। डेट श्रेणी में विदेशी निवेशक 5 महीनों के बाद सबसे बड़े निवेशक बनकर वापस लौटे हैं। इससे पहले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने फरवरी में 4,734 करोड़ रुपए का निवेश किया था। Right, and joining us next is Dinesh from Mumbai. Good evening and welcome to the program. Hello, could you hear? Dinesh Patel here. Yeah, Dinesh. Yes. मेरा लड़का 18 years फिनिश कर रहा है जी। धीरेन्द्र जी से सवाल है कि उसके लिए पर मंथ 1,000 रुपीज का कोई अच्छा म्यूचुअल फंड बताएं। उसे टैक्स नहीं देना होगा कि जो आमदनी है उसके आधार पे। 18 years completed जी, द बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर लॉन्ग रन फ्रॉम धीरेन्द्र जी। एक अच्छा मल्टी कैप उसमें आप उनका निवेश शुरू कर दीजिए और उनको जानकारी दीजिए ताकि वो सीख भी पाए कि निवेश कैसे हो रहा है। जी। और चेन्नई से हमारे श्रोता काशीनाथ जी लाइन पे हैं। काशीनाथ जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? पूरा मार्केट मंत्र टीम को नमस्कार। नमस्कार सर, मैं धीरेन्द्र सर से मेरा प्रश्न यह है कि पिछले हफ्ते में पूछा था कि जो फंड चेंज करना है 3-4 साल के बाद अगर फंड चेंज करना है, वो बोले थे कि एवरेजिंग काम हो चुका है,
वो दूसरा कंपनी में, एक कंपनी मतलब यूटीआई में है, मेरा वो दूसरा कंपनी के वही एवरेज सेम एवरेज काम देगा क्या? इसका बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, धन्यवाद। नहीं, आपका प्रश्न मुझे नहीं समझ में आया। मेरा प्रश्न ये है कि सपोज 3 साल का बाद एक फंड का 35,000 या 40,000 हुआ है, वो 3 साल का बाद जो एवरेजिंग मेरा हुआ है उसी में जी वो मेरा दूसरा कंपनी मतलब मेरा एसेट को जाऊंगा या एक्टिव को जाऊंगा, वही चेंज हो सकता है कि वही एवरेजिंग काम देगा क्या? इसके बारे में थोड़ा जानकारी। नहीं, मुझे ख्याल है ये सवाल, और इसमें ये करना चाहिए जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको इक्विटी में पैसा धीरे धीरे लगाना चाहिए, और आपने इक्विटी में पैसा धीरे धीरे लगा लिया है। जो आपका पैसा इकट्ठा हुआ यूटीआई के फंड में, जिसको कि आप मिराई एसेट के किसी दूसरे फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पूरे पैसे को रिडीम करें और एक साथ उस पैसे को लगा दें। उसका कारण क्या है कि जो एवरेजिंग होना था वो आपके पैसे के साथ हो चुका है। जो अभी आपका अगर अभी भी और निवेश हो रहा है तो नया पैसा धीरे धीरे जो लगाना है वो जरूर उसका एसआईपी शुरू कर दे, लेकिन पुराना इकट्ठा हुआ पैसा जो इक्विटी पे इकट्ठा हो चुका है, तो ये जो एवरेजिंग का जो रिस्क है वो आपने मिटिगेट कर लिया है, वो आपने उसको संभाल लिया है। तो एक पुराने पैसे, इकट्ठे हुए पैसे को एक साथ दूसरे फंड में जरूर स्विच कर सकते हैं। नया पैसा धीरे धीरे ही लगाना चाहिए, एक तो हमारी आमदनी के साथ वो मैच करता है, और दूसरा एक साथ बड़ा पैसा लगा देते बाजार में भारी गिरावट होती है तो बड़ी चिंता होती है। Right, and let's move on and take our next caller. We have Samir joining us from the US. Hello Samir, and welcome to the program. Yes sir, thank you so much. बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। सर मैं रिसेंटली म्यूचुअल फंड इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू किया है, तो मैं ये पूछना चाहता था कि मुझे एक्चुअली बेसिकली जो है मेरे फादर के लिए जो इंडिया में रहते हैं 20,000 रुपीज का पर मंथ जो है वो सम सॉर्ट ऑफ मंथली इनकम का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट करना है ताकि उनको वो मंथली इनकम मिल सके। तो मैं जानना चाह रहा था कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर में एनआरआई के लिए क्या ऑप्शन है और मैं वो कैसे कर सकता हूँ? आप एनआरआई एलिजिबल हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। केवल आपको एक ही अपने बैंक अकाउंट से सारा निवेश करना होगा और आप बड़ी आसानी से करते हैं। दूसरा तरीका है कि अपने पिताजी के नाम से उनको हर महीने पैसे देते हैं और आपके पिताजी के निवेश को भी आप यहाँ से संभाल सकते हैं। और इस उद्देश्य के लिए जो करना है, इसका एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल है जो कि आमतौर पर फॉलो करना चाहिए कि इकट्ठा करने हमारे सारे निवेश का एक दो पार्ट होता है या 2 भाग होता है या 2 फेज होता है। एक खास भाग जिसमें कि एक खास समय जिसमें कि हम अपना पैसा इकट्ठा कर रहे होते हैं। धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करते करते हम कुछ कैपिटल बिल्ड करते हैं और उसके बाद हम उसको कंज्यूम करना शुरू करते हैं। उस कैपिटल से धीरे धीरे हम पैसा निकालते हैं। तो अभी अगर आप इकट्ठा करने वाले फेज में है तो इक्विटी में पैसा लगाना चाहिए। जब निकालने वाला फेज आए तब उसको थोड़ा कंजर्वेटिव कर लेना चाहिए। सारा पैसा इक्विटी में नहीं रहना चाहिए ताकि अचानक बाजार में गिरावट से आपकी आमदनी पे उसका खासा असर न पड़े। तो और एनआरआईज के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना बहुत आसान है। ये सब कुछ आज ऑनलाइन भी हो गया है। शुरुआत में आपको केवल एक बार एक खाता खोलना पड़ेगा और इस चीज के लिए जरूरी है कि आप केवल एक FCNR अकाउंट से ही आप ऑपरेट करें। So that's it, listeners. We have come to an end of this program, and we have Parimal joining us from Mumbai, but due to paucity of time, we won't be able to take his call. धीरेन्द्र, इस कार्यक्रम में शामिल होने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। And we'd also like to thank all our callers for their active participation in today's program. And before we close, a quick look at the top stories. Government aims to create 5 crore MSME jobs in the country, says Micro, Small and Medium Enterprises Minister Nitin Gadkari. India's gold imports plunged 81% during the April-July period this year, and foreign investors pump in over 28,000 crore rupees in India's capital markets in the first half of August. That's it in this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra.